Good morning, students. I hope you have started your studies in earnest, going through your chapters, understand them, and if you have difficulty, we'll solve out later. Keep marking if you have any problems. So, to take our chapter forward, we have started Resources and Development, the first chapter of Geography. About a brief about yesterday's lesson. What have we read about? The classification of resources, then the development of resources, few problems that we are facing, the causes of depletion of resources, and the importance of sustainable development. What is sustainable development? Yes, answer me. What is sustainable development? The development which does not compromises with the needs of future generation and which does not harm the environment. That type of development is known as sustainable development. And yesterday's lesson we have ended with a point that in order to have sustainable development, in order to save our nature, in order to save our resources, we need to have resource planning. So today we'll take this topic only, resource planning. Now the first question that comes to the mind is, what is resource planning? Short question and short answer. क्या है इसका आंसर? Judicious use of resources. What is resource planning, children? Judicious use of resources. And what is the meaning of judicious use? Proper use. Resources का सही तरीके से सही जगह पर यूज़ करने को ही क्या कहते हैं? Resource planning. And if we see, resource planning has a very much importance in a country like India. इंडिया कहने को तो बहुत वास्ट कंट्री है. वी हैव सो मैनी रिसोर्सेज. इन लेटर चैप्टर्स विल स्टडी अबाउट दोज रिसोर्सेज दैट वी हैव इन इंडिया. बट डिस्पाइट हैविंग सो मैनी रिसोर्सेज, we need a proper resource planning. So why do we need that? We'll study. In India we need because we have enormous diversity in the availability of resources. Resources are there in India. We have, I can say, all the types of resources. Only few things are there, as I said, we'll read in later chapters, which are not present in India. Otherwise, India has most of the resources. But still we need resource planning because there are regions which are rich in certain types of resources, but they are डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज. इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ा कंट्री है, हमने 9th में फिज़िकल फीचर्स पढ़े थे इंडिया के. कहीं माउंटेन्स है, कहीं आइलैंड्स है, हाँ डेजर्ट भी है, रिवर्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, प्लेटो रीजन है. वी हैव ऑल द टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन इंडिया. लेकिन क्या है इससे? कुछ एरियाज़ हैं जहाँ कुछ रिसोर्सेज हैं, and there are other areas which have other types of resources. Any one particular area does not have all the types of resources. Now, there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. Different states, different areas, different landforms. कुछ एरियाज़ है जहाँ कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं और कुछ एरियाज़ है जहाँ कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं. सी फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, दे आर रिच इन मिनरल्स एंड कॉल डिपॉजिट्स. अंडरलाइन कर लो इसको. अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. पानी पानी बहुत है लेकिन और कोई डेवलपमेंट नहीं है. Rajasthan, if we talk about our state Rajasthan, we have lot of solar energy, wind energy, but we don't have water resources and so on.
So all the states, all the regions, they are rich in a particular type of resource, but they lack some other resource. तो क्योंकि ये एक imbalance है, हर एरिया को हर रिसोर्स नहीं मिला है, तो for this it calls for balanced resource planning at the national level, state level, regional level and local level. हर लेवल पर होता है. देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ. आपके फ्रेंड ग्रुप का एग्जाम्पल लो. देयर आर 3-4 फ्रेंड्स, आप सबका एक ग्रुप है. ऐसा तो नहीं है कि चारों पांचों फ्रेंड्स जो 4-5 सब्जेक्ट आप पढ़ते हो सब में मास्टर हो. किसी की मैथ्स अच्छी है, किसी की इंग्लिश अच्छी है, आई होप किसी की सोशल साइंस अच्छी हो. हाँ, तो ये फिर क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, जिस फ्रेंड की मैथ्स अच्छी होती है उससे मैथ्स पढ़ते हो, जिसकी हिंदी अच्छी है वो आपको हिंदी समझाता है ना. और इस तरह से आप अपने पांचों सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हो. तो इसमें ये क्या हो रहा है, पांचों के पास पांचों सब्जेक्ट की इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन आप आपस में शेयर कर रहे हो. ये ही एक प्लानिंग का तरीका है. दैट इज़ रिसोर्स प्लानिंग. आप सबके पास एक एक रिसोर्स है, आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो. तो क्या हुआ, ये रिसोर्स प्लानिंग. सेम थिंग इज रिक्वायर्ड इन इंडिया ऑल्सो. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. नाउ हाउ डू वी डू रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. हाँ, ये हम प्रैक्टिकली यहाँ पढ़ेंगे. रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इट हैज़ 3 steps. 3 steps, तीनों पॉइंट्स में अलग अलग लिखना क्या क्या है. इट्स गिवन देयर इन योर बुक. First of all, what do we do for resource planning? Identification and inventory of resources across the regions of the country. पहला स्टेप रिसोर्स प्लानिंग के लिए क्या अडॉप्ट कर रखा है हमारी गवर्नमेंट ने. सबसे पहले रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? पहचानना. भाई कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है ये पता तो करें, ऊपर ही थोड़ा बिखरे पड़े हैं. ये रहा कोल, ये रहा आयरन दिख गया अर्थ पर पड़ा हुआ. हाँ, पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि हर चीज़ अर्थ के अंदर है. सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मीन्स लिस्ट बनाना. रिसोर्सेज की एक लिस्ट रेडी की जाती है, कौन सा रिसोर्स इंडिया के कौन से पार्ट में है. और इसके लिए क्या क्या होता है देखो. दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources. पहले सर्वे किया जाता है कहाँ पर रिसोर्स है, फिर उस एरिया की मैपिंग होती है, भाई इतने एरिया में रिसोर्स है, किस क्वालिटी का है, हर चीज़ की क्वालिटी होती है, एंड हाउ मच क्वांटिटी, किस अमाउंट में वो रिसोर्स प्रेजेंट है. ये पहले एक वर्क होता है ना, मैपिंग एंड आइडेंटिफिकेशन एंड मेकिंग अ लिस्ट. Second step, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. अब second step क्या होता है, एक planning structure ready किया जाता है. How to take out that resource, that is with the help of appropriate technology. हर रिसोर्स को, हर मिनरल को अर्थ में से निकालने के लिए अलग टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है. इफ़ वी नीड टू टेक आउट कोल एंड आयरन, वी रिक्वायर अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इफ़ वी नीड टू टेक आउट फॉसिल फ्यूल फ्रॉम द अर्थ, वी रिक्वायर अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी. पानी को निकालने का भी तरीका अलग है और ऑयल को निकालने का तरीका अलग है. तो ये सब अलग अलग है ना. तो जिस रिसोर्स को निकालना है वहाँ पर उसकी टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाता है. हो गया. सबसे पहले हमने रिसोर्स ढूंढा, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी के थ्रू से निकालना है वो टेक्नोलॉजी मैच करी. एंड द थर्ड इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. अब थर्ड स्टेप क्या होगा, हमें पता चल गया रिसोर्स क्या है, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली. नाउ वी विल स्टार्ट टेकिंग आउट दैट रिसोर्स. और ये टेकिंग आउट रिसोर्स किस हिसाब से होगा, ये नहीं कि ओके वी हैव सो मच ऑफ थिंग टेक आउट सारा निकाल लो. नहीं, रिमेंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट
हमें फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज बचा के रखने हैं, तो हम सिर्फ उतना ही रिसोर्स निकालेंगे विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर टुडेज डेवलपमेंट. एट प्रेजेंट डेवलपमेंट के लिए हमें जितना रिसोर्स रिक्वायर्ड है, वी विल टेक आउट ओनली दैट मच ऑफ रिसोर्स, है ना, नेशनल डेवलपमेंट के लिए. सो दिस इज the resource planning is done in 3 steps. The first one was identification and making an inventory. The second one was arranging appropriate technology and setting up proper institution. And third, matching the resource development plans with national development plans. हमें आज के लिए कितना resource चाहिए, only that much of resource will be taken out. So these are the 3 steps of how resource planning is done in India. Now, India had made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan. 1952 में first 5-year plan start हुआ था with the making of our first government. And can you tell me why 5-year plan? Why not 4-year or why not 6-year plans? Yes, because our governments are elected for 5 years, so all the development plans are generally made for 5 years. They can be carried forward, but एक जो टाइम लिमिट होती है वो कितनी होती है, 5 ईयर की. तो 5 ईयर प्लान्स जो पहला बना था, तब से ही हमने अपनी रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी. Now, the availability of resources is a necessary condition for the development of any region. ये तो हम समझ रहे हैं कि अगर किसी भी एरिया को हमें डेवलप करना है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों कि वहाँ पर रिसोर्सेज हो. In the absence of resource, no development can take place. But mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development. इसका मतलब ये हुआ, only availability of resource is not important. Resource तो है, but अगर हमारे पास उस रिसोर्स को यूज़ में लेने की टेक्नोलॉजी नहीं है, then it is of no use. अभी हमने पढ़ा था, कौन से स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, विच हैव अ लॉट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज बैकवर्ड. उनके पास कितना मिनरल है, स्टॉक है बहुत, बट स्टिल दे आर लैकिंग डेवलपमेंट. वाई? बिकॉज दे लैक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो रिसोर्स के साथ साथ क्या ज़रूरी है, उस रिसोर्स को यूज़ में लेने की टेक्नोलॉजी भी होना ज़रूरी है. देन ओनली वी कैन develop. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region. I gave you example of 2 states, right? So बिहार, आपने backward 2 states पढ़े होंगे ना, तो उसमें आता है छत्तीसगढ़, बिहार, ये सब क्या हैं, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, खूब मिनरल्स हैं, बट स्टिल दे आर बैकवर्ड बिकॉज दे ओनली हैव रिसोर्सेज. अर्थ में तो बहुत है उनके पास, लेकिन उसको यूज़ में लेने की टेक्नोलॉजी नहीं है. ऑन द कॉन्ट्ररी, देर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड. कैन यू गिव मी द नेम ऑफ एनी सच 2 states? आई विल गिव यू. हाँ, पंजाब एंड हरियाणा. बताओ क्या है पंजाब एंड हरियाणा? उनके पास सिर्फ 2 रिसोर्स हैं. कौन से? सिर्फ 2 रिसोर्स, लैंड एंड वाटर. क्या है उनके पास? सिर्फ लैंड एंड वाटर, नो मिनरल्स. चिल्ड्रन, पंजाब हरियाणा में आपको कोई मिनरल्स नहीं मिलेंगे, बट इफ़ यू सी द इंडेक्स, स्टेट वाइज डेवलपमेंट इंडेक्स, जैसा कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, दे आर रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. क्योंकि उनके पास जो 2 रिसोर्स है, उन्होंने उसका भी मैक्सिमम यूज़ कर रखा है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है. सो देर आर एरियाज विच आर हैविंग रिसोर्सेज, बट बिकॉज दे डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू यूज़ इट, दे आर बैकवर्ड. There are areas which lack important resources, लेकिन जो भी उनके पास resources हैं, उनकी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर रखी है, so they are considered as developed areas. The history of colonization reveals that
Rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. ये सब हम importance of technology पढ़ रहे हैं बच्चों. क्या है ये? रिसोर्स होना काफ़ी नहीं है, उसके यूज़ में लेने की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए. और इसी के लिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है. देखो, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन. हिस्ट्री में हमने पढ़ा है इंडिया हैज़ बीन अ कॉलोनाइज्ड कंट्री. इंडिया में शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंशियंट टाइम से अगर अटैक हुए हैं तो किस लिए हुए हैं? यहाँ के रिसोर्सेज के लिए. इंडिया शुरू से रिसोर्स रिच कंट्री रहा है. बट if we talk about colonization time, when India was an imperialistic country, that was when we have imperialism in India. colonization था हमारे यहाँ, ब्रिटिश रूल जिसे हम कहते हैं. तो वो भी इंडिया में आए और हमें क्यों कॉन्कर कर पाए? हमारे पास रिसोर्सेज थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी. तो जिसके पास टेक्नोलॉजी है, दे हैव अ सुपर हैंड above those places who have only resources. It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. क्यों हम पर इतने सालों तक ब्रिटिश रूल रहा? We had resources, but they had technology. और अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से they ruled the world. So, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. कोई भी country, कोई भी area तभी develop कर पाएगा जब उसके पास resource के साथ साथ क्या होगा? Better technology, appropriate technology, how to use that resource. नहीं तो वो रिसोर्स मिट्टी में पड़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है. वो तभी काम का बनेगा जब उसे यूज़ में लेने की टेक्नोलॉजी होगी. और इंडिया ने तो एज आई सेड देखा ही है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. इंडिया वॉज अटैक्ड बाय वेरियस डायनेस्टीज, देन मुगल्स केम टू इंडिया, देन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया. इट वॉज बिकॉज ऑफ इंडियाज रिसोर्सेज and even because they had better technology, better weapons than Indians. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resource. तो क्या ध्यान में रखना है? Mere availability of resource is not enough, but also the technology, quality of human resource, skilled technicians, and the historical experiences of the people. ये तीनों जब combine होंगे, then only development will take place. कौन तीनों? The availability of resource, appropriate technology, and quality of human resources. ये सब combine होंगे, then only any type of development will take place. I hope you understood today's topic, resource planning. Judicious use of resources. Why we need resource planning in India? Because India is such a diverse country. How resource planning is done in India? 3 steps. I told you, I explained you how resource planning is done in India. And what is important, along with resource, we also require appropriate technical development, appropriate technology, institutional setups. Then only development will take place. So I give a stop to the lesson here. We'll continue tomorrow. Till then, keep reading.